प्रभु के दास चाहते हैं उनकी कलीसिया एक पेंतिकोस अनुभव में रहने पाए और उस महसूस को करने पाए जो हालेलुया से होता है कि हमारी कलीसिया जीवित है। Amen. आमेन। It's a great day for the church, the Bible believing Church of India, to have an amazing auditorium inside a shopping mall. और एक बहुत ही अच्छा दिन है BBCI के लिए, एक अच्छा ऑडिटोरियम परमेश्वर ने आपके हाथ में दिया है। And also we were able to make Persis happy because she wanted the churches in the shopping mall. और इसके कारण प्रभु की दासी पर्सिस हैं वो भी आनंदित हैं क्योंकि वो चाहती थी कि ऐसे शॉपिंग मॉल्स में कलीसियाएं होने पाए। Amen. आमेन। Maybe one day we will build our own shopping malls. और एक दिन ऐसा आएगा जब हम अपने शॉपिंग मॉल बनाएंगे। Amen. आमेन। One day a time will come the buildings cannot contain the churches anymore. और एक समय ऐसा आएगा जब इमारत परमेश्वर की कलीसियाओं को वास नहीं कर पाएंगी। We are getting there and God is leading us. और हम वहीं पहुंच रहे हैं और परमेश्वर अगुवाई कर रहा है। Amen. आमेन। And I want to thank Pastor John and Philip for inviting me for this wonderful occasion. और मैं पासवान जॉन फिलिप का भी धन्यवाद करना चाहता हूं इस उत्सव में मुझे निमंत्रण देने के लिए। There is no way that I could come here today. और किसी भी तरह से मैं यहाँ नहीं आने वाला था। I tried to tell him, Pastor, we got all these things going on. There are so many important things to be handled. So would you please let me go? But he won't let me go. He would say, no, Pastor, only for a couple of hours you should come. और मैंने पासवान से कहा कि बहुत और भी महत्वपूर्ण सभाएं या कार्य भी हैं, आप मुझे उसमें से दखल ना दें, लेकिन उन्होंने कहा नहीं पासवान आपको आना ही पड़ेगा, कुछ घंटों के लिए इस सभा के लिए आना पड़ेगा। And I come here and I see a great, group of great men of God sitting here and I'm thinking, what am I doing here? Why should I be coming here today? और जब मैं यहाँ पर आया परमेश्वर के सामर्थी जन लोग यहाँ बैठे हुए हैं और मैं ये पूछने लगा अपने आप से मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। We have a convention starting on Wednesday in the city of Gwalior. और ग्वालियर में बुधवार के दिन एक महासभा का आयोजन वहाँ पे किया गया है। I have our engineering college there, so we have our convention always inside the premises of the college. और प्रभु के दास का एक इंजीनियरिंग कॉलेज वहाँ पर है और ये महासभा उसी इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर होता है। As I am talking to you, many of my pastors have already started traveling. और जैसे मैं बात कर रहा हूँ प्रभु के दास के कई पासवान हैं यात्रा शुरू कर ली है। We will be having about 5,000 pastors in our convention starting from Wednesday. और इस महासभा जो बुधवार से शुरू होगा करीबन 5,000 पासवान वहाँ पे भाग लेंगे। So much of things to be done. As a matter of fact, tomorrow early morning by 4 o'clock, we will drive to Gwalior to find the last things to be done before the convention begins. और बहुत सारे कार्य करने हैं। कल सुबह 4 बजे प्रभु के दास यहाँ से यात्रा करेंगे और देखेंगे उस महासभा शुरू होने से पहले क्या क्या जिम्मेदारियां या कार्य करने हैं। I was listening to Pastor John and Philip about his studies, his Bible college just across from here, and how the Lord has brought him through to where he is today. और मैं प्रभु के दास पासवान जॉन फिलिप को सुन रहा था उनके अध्ययन के बारे में और बाइबल कॉलेज जो यहाँ पर ही है किस तरह प्रभु उन्हें यहाँ तक लेकर आया। And I think that when he was studying in the Bible college, I believe there was a batch, a group of young men who graduated at that time and come out, and they have been used by God in so many places today. And I think there's an amazing batch of the Grace Bible College. और मैं विश्वास करता हूँ जब वो अध्ययन कर रहे थे एक बैच जिन्होंने स्नातकता पाई और वो निकल कर आए और ग्रेस बाइबल कॉलेज के द्वारा परमेश्वर के एक सामर्थी तौर से इन दिनों में वो कार्य कर रहे हैं। Some of his batchmates are working with us and they are doing amazing work in our organization. और उनके कक्षा में जो पढ़ते थे कुछ में से कुछ लोग प्रभु के दास की संस्था में काम करते हैं और बहुत ही अच्छा काम वो कर रहे हैं। Amen. आमेन। And I thank God for the vision that God has given to Brother John, what we have done, and so many other activities that he is doing. Some of you might know, and may the Lord bless all his endeavors in the days to come. और मैं परमेश्वर के दास का धन्यवाद करता हूँ भाई जॉन का उनके दर्शन का और मेरी प्रार्थना है आने वाले दिनों में परमेश्वर उन्हें और आशीष और इस्तेमाल करने पाए। When I got the program, the first thing I was doing was just trying to find out how many minutes
every item should be. और जब मैं उस कार्यक्रम सूची को देख रहा था, मैं ये सोच रहा था कि हर आइटम जो है कितना समय लेना चाहिए। But I think that Pastor John believed in every one of us, so he did not give us a time, hoping that we will keep our time. और पासवान जॉन ने हम पर विश्वास किया, कोई समय हमें नहीं बताया और ये उम्मीद करते हुए कि हम सारी बातें समय पर खत्म करेंगे। Preachers don't know how to stop when they start the preaching. और प्रचारक लोग नहीं जानते जब वो प्रचार करते कहाँ पे खत्म करना है। I have been given 2 responsibilities put together in one item. और प्रभु के दास को 2 जिम्मेदारियां दी गई हैं एक साथ करने के लिए एक ही चीज में। I won't take a long time. I'll share a thought from God's word, and then I will do my responsibility of dedicating this amazing church building that God has given to us. मैं ज़्यादा लंबा समय नहीं लूंगा, उस विचार को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा जो परमेश्वर ने मेरे मन को रखा है। उसके बाद इस इमारत को हम समर्पण करेंगे परमेश्वर के हाथ में। I want you to look at your Bible in the Gospel of Luke, chapter 14, verse 28. और लूका रचित सुसमाचार 14 अध्याय और 28वीं आयत को आइए अपने बाइबल को मोड़ें। We'll just read one verse, and then I'll share with you a couple of thoughts from that verse. और इस आयत को हम पढ़ेंगे और कुछ बातों को मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। Luke chapter 14, verse 28. लूका 14 अध्याय 28वीं आयत। This is Jesus Christ speaking. और ये प्रभु यीशु मसीह बात कर रहे हैं And he says, और वो कहता है, for which of you और तुम में से कौन है intending to build a tower जो गढ़ बनाना चाहता हो does not sit down first and count the cost whether he has enough to finish it. और पहले बैठकर खर्च न जोड़े कि पूरा करने की सामर्थ मेरे पास है कि नहीं। Jesus Christ is putting a challenge to every one of us. और यीशु मसीह एक चुनौती हम सबको यहाँ पर दे रहा है। He says, which of you intend to build a tower? और तुम में से कौन है जो गढ़ बनाना चाहता है। Firstly, I wanted to say to every one of you that God has called every one of us to be a builder. और परमेश्वर ने हम सबको क्या बनाने के लिए, बनाने वाला बुलाया है, इसके लिए बुलाया है। We have not been called to destroy anything, but God has called us to build something. परमेश्वर ने हमें विनाश करने के लिए नहीं बुलाया है, बल्कि कुछ ना कुछ बनाने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। Amen. आमीन। I want you to know, everyone who is listening to me this evening, you are a builder in God's kingdom. और मैं चाहता हूं कि हर एक व्यक्ति जो आज शाम मुझे सुन रहे हैं, आप परमेश्वर के राज्य में कुछ बनाने वाले हैं। Hallelujah. हालेलुया। Why I should be a builder? और क्यों मैं एक बनाने वाला बनूं? Because Jesus is a builder. क्योंकि यीशु है जो बनाने वाला है। Jesus says that I will build my church, यीशु ने कहा मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा and the gates of hell shall not prevail और against. अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। And Paul says और पौलुस कहता है that Jesus Christ being the master builder, और यीशु मसीह है वो मुख्य बनाने वाला। we are the co-laborers with Christ building the kingdom of God. और हम मसीह के साथ सहकर्मी हैं, परमेश्वर के राज्य को हम बना रहे हैं। So that's why we are supposed to be builders. और इसलिए हमें बनाने वाला होना चाहिए। Amen. आमीन। Are you a builder in your life? और हमारे जीवन में आप बना रहे हैं, Because in the world, everybody is building something. क्योंकि दुनिया में कोई ना कोई कुछ ना कुछ बना ही रहा है। Building somebody a business. और कोई एक व्यवसाय को बना रहा है Building the career in their life. और उनके जीवन में अपने करियर को बना रहा है, Building a house. एक घर को बना रहे हैं। If nothing else, somebody is just building a dream और- of something to happen. और नहीं तो कुछ अपने सपने वो बुन रहा है कि कुछ होने के लिए। But God wants us to be a builder. लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम बनाने वाले होने पाए। Have you brought your right hand with you? क्या आप अपने दाएं हाथ को अपने साथ लाए हैं? Would you please show that to me? क्या आप मुझे वो दिखाएंगे? Okay, would you please put that on your chest where your heart is? और जहां पे आपका हृदय है वहां पर आप रखें So you have to repeat after me. और प्रभु के दास के पीछे आप बोलें। Amen? आमीन। Are you ready? क्या आप तैयार हैं? This is what you say. और ये आप कहें। I am a builder. और- Well, it sounds like that you don't believe that. और इस तरह से बोल रहे हैं जैसे आप विश्वास नहीं करते हैं। Sometimes our confession is so pathetic, it seems like we don't believe in anything that we say. और कई बार जिस तरह से हम अंगीकार करते हैं वो इस तरह से है कि हम विश्वास नहीं करते हैं। So let's try again. आइए फिर से कोशिश करें। Okay? This time, as I said, like hallelujah, you better shout it from the depth of your heart.
right through your vocal cord. Let the Lord hear that we mean it. और जैसे हमने कहा कि आप हालेलुया कहें, आप अपने हृदय की गहराइयों से कहें और गले से निकलकर प्रभु सुनने पाए जो हमने कहा है। Are you ready? क्या आप तैयार हैं? I am a builder. I am a builder. Where have you been? When I asked you to say something, none of you were here. आप कहाँ पे थे जब मैंने कहा कहने के लिए? But let's try one more time. एक और बार कोशिश करें। I am a builder. 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 What do you think? Pastor Abraham does not have a message, so he is making you to shout hallelujah and builder, and then she can just go home after saying something. No. क्या आपको लगता है कि पासवान अब्राहम के पास संदेश नहीं है, वो आपको हालेलुया बुलवा रहे हैं, मैं एक बनाने वाला बुलवा कर चले जाएंगे? ऐसा नहीं। Whenever we make a confession, जब भी हम अंगीकार करते हैं, it's like you realize when I asked you to say first, not many people confess that they are a builder. और जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि मैं एक बनाने वाला हूं, बहुत सारे कम लोगों ने ही इस बात का अंगीकार किया। That I'm just compelling you to confess that you are a builder. और फिर मैं आपको विवश करता हूं ये ऐलान करने के लिए मैं एक बनाने वाला हूं। So what happens when you confess something for a few times? और जब आप कुछ बातों को कुछ बार अंगीकार करते हैं, क्या होता है? First of all, you do that for the preacher. और पहली बात आप प्रचारक के लिए वो करते हैं, You don't say it for yourself. आप अपने लिए नहीं कहते हैं। This guy has come all the way from Delhi, is making us to shout all these things. So you are trying to convince and please me. और ये व्यक्ति दिल्ली से आया है और हमें ये चिल्लाने के बोलने को कह रहा है, तो हम बोल देते हैं इसकी खुशी के लिए। But when you start confessing it, लेकिन जब आप अंगीकार करना शुरू करते when हैं you say that 4-5 times, और जब आप 4-5 बार उसे बोलते हैं, you will start to think maybe I'm a builder. और शायद आप सोचने लगे शायद मैं एक बनाने वाला हूं, And when you say that a couple more times, और कुछ और बार आप उसे दोहराना शुरू करते हैं, no doubt that you are convinced that you are a builder in the kingdom of God. और बिना शक के आप बोधित हो जाते हैं कि आप परमेश्वर के राज्य में बनाने वाले हैं। Amen. आमीन। A small words, I'm going to divide that into 4 parts and I will share it with you quickly. और एक छोटी सी आयत उसे मैं 4 भागों में बांटूंगा और जल्दी से बताऊंगा। Jesus says, यीशु ने कहा, number 1, पहली चीज, if anyone intend to build a tower, अगर तुम में से कोई गढ़ बनाना चाहता है, that's number 1, intention to build. और पहली चीज है मनसा होनी चाहिए। And number 2, दूसरी चीज, he should sit down first. और वो बैठ जाए। And that's number 2. दूसरी चीज, And number 3, और तीसरी चीज, count the cost. और उस खर्च को जोड़ लें। And number 4, और चौथी चीज, finish the job. उस काम को पूरा करें। That's what Jesus says in the little verse. और यही यीशु कहता है इस आयत में। Let me run it through quickly, please. मैं फिर से उसे पढ़ना चाहूंगा। If a person intend to build, अगर एक व्यक्ति मनसा रखता है बनाने के लिए, the word intention has got several meanings in English. और अंग्रेजी में इंटेंशन जो शब्द है उसके कई मतलब है। The intention, another meaning is desire to build. और मनसा का एक मतलब है कि इच्छा बनाने के लिए। Another meaning is the determination to build. और दूसरा मतलब है निर्णित होना कि मुझे यह निश्चित होना कि मुझे ये बनाना है। Another meaning is the commitment to build. और एक और मतलब है कि समर्पण उसे बनाने के लिए। Amen. आमीन। That means that nothing is going to change. इसका मतलब है कोई चीज इसे बदलेगा नहीं। अब Nobody can stop you from what you're going to do. कोई आपको नहीं रोक सकता जो आप करने वाले हैं, Because you have an intention to do this. क्योंकि आपके अंदर एक इच्छा या मनसा है उसे करने के Your लिए, heart full of desire. और आपका हृदय इच्छा से भरा हुआ Your है। determination in your heart. आप निश्चित हैं अपने हृदय में, Your total commitment to do it. आप पूरी तरह से समर्पित हैं उसे बनाने के लिए, That's where everything begins. और यहीं पर सारी चीजें शुरू होती हैं। Maybe one day Brother John came through and this as you can see, this mall is not finished. So much of work is going on in between. He's looking around and he saw this unfinished piece of building, and there he saw something that could happen through this building. और शायद भाई जॉन यहाँ से गुजरे होंगे और उन्होंने इस मॉल को देखा होगा जो पूरा नहीं हुआ है, और फिर उनके बाद मन में एक मनसा उठी होगी कि कुछ यहाँ कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने सोचा होगा। He saw on that day उस दिन उन्होंने देखा होगा just a dilapidated concrete piece of building here, but he saw what it has happened today, what we are seeing. That's what
he saw in his eyes. उस समय उन्होंने देखा होगा कि ईंटों की एक इमारत है, लेकिन जो आज हम यहाँ देख रहे हैं वो उन्होंने उस समय देख लिया होगा। Amen. आमेन। That's the beginning, friends. Our commitment, our dedication to build something. और यही शुरुआत है हमारा समर्पण कुछ बनाने के लिए। I am actually celebrating my 50 years in the ministry. और प्रभु के दास अपने 50वें साल को मना रहे हैं सेवकाई में। I started my ministry when I was 21 years old. प्रभु के दास जब 21 साल के थे तब उन्होंने सेवकाई को शुरू किया Walking along the streets with a shoulder bag full of tracts. और एक बैग के साथ कंधों पे लेकर उस ट्रैक से भरा होकर वो चलते थे। I was not a preacher. Nobody invited me to preach. और मैं एक प्रचारक नहीं था, किसी ने मुझे न्योता नहीं दिया प्रचार करने के लिए। I was nobody in those times. उन दिनों में मैं कुछ भी नहीं था, But I have a desire. लेकिन मेरे अंदर एक इच्छा थी। I had a determination in my heart. मैं एक बात से निश्चित था अपने हृदय में। I remember a time where I had no place to go. और मैं जानता था एक समय एक दिन ऐसा था जहां मुझे नहीं पता I कहाँ was जाना spending है। the night in front of a shop. और रात को मैं समय बिताता था एक दुकान के सामने 2 o'clock in the morning. और सुबह 2 बजे, I was just a nobody. और मैं कुछ भी नहीं था But I sat there in front of that shop. और उस दुकान के सामने मैं बैठा And I said to God like this. और मैंने परमेश्वर से ऐसे कहा, God, I want to have 1,000 churches in this country. परमेश्वर मैं चाहता हूं कि इस देश में हजारों कलीसिया मुझे चाहिए। I actually believe that it will never happen. और मैंने विश्वास किया कि ऐसा नहीं होगा। I even told God, when it happens, you can take me home. और मैंने प्रभु से कहा जब ऐसा होगा आप मुझे अपने घर ले बुला सकते हैं। Because I thought my life is saved. 1,000, I can't even count 1,000. और- And how 1,000 churches are going to happen? और मैं सोचता था कि मेरा जीवन कैसा है कि मैं हजारों की गणना नहीं कर सकता और कैसे मैं हजारों कलीसिया को पा सकता हूँ। 30 years later, 30 साल बाद 2004, January the 15th, और 2004 के समय साल में जनवरी 15 को I started the 1,000th church. और मैंने उस 1000वीं कलीसिया की स्थापना की। Hallelujah. हालेलुया। I was only about 52 years old. और 50-52 साल हो चुके हैं। Oh God, I said it, you can take me home. और मैंने परमेश्वर से कहा परमेश्वर आप मुझे घर बुला सकते I'm हैं। too young, don't do that to me. और मैं बहुत ही जवान हूँ, अब ऐसा ना करे मेरे साथ। God was not planning to take me home. और मैं कोशिश नहीं कर रहा था, रो रहा था कि आप मुझे घर बुलाएं। God said, continue to do my work. और मुझे अपने काम को और करना है। It took 30 years for me to start from 0 to 1,000 churches. और मुझे 30 साल लग गए 0 से 1000 कलीसियाओं की स्थापना करने के I लिए। said, Lord, I cannot wait for another 30 years to start another 1,000 church. और मैंने प्रभु से कहा मैं अगले और 30 साल नहीं इंतजार कर सकता कि 1000 कलीसिया को और स्थापना करूं। I said, Lord, I wanted to start another 1,000 churches in 6 years' time. और मैंने प्रभु से कहा मुझे 1000 कलीसियाओं की स्थापना करनी है अगले 6 साल में। It did not take 6 years. और वो 6 साल नहीं हुए। In the next 4 years, we grew from 1,000 to 2,000 churches. और अगले 4 साल में हम 1000 से 2000 कलीसियाओं की हम स्थापना कर पाए। And it keeps on growing, friends. और इसी तरह वो बढ़ रहा है मेरे दोस्तों। Today I'm standing before you about 4,700 churches right across every state, every nook and corner of this nation of India. आज मैं आपके सामने खड़ा हूं भारत के कोने कोने में 4000 कलीसियाओं की स्थापना के साथ मैं यहाँ पर खड़ा हूं। I believe that I am a builder. मैं विश्वास करता हूं कि मैं एक बनाने वाला हूं। I believe that I have a master builder. मैं विश्वास करता हूं कि मेरा स्वामी है जो बनाने वाला है। I believe that I carry an anointing upon my life. मैं विश्वास करता हूं कि अभिषेक को लेकर चलने वाला हूं। I want to just encourage every one of young people. I want you to know that you don't need to have anything, but all you need is God on your side and God's anointing upon your life. You'll be able to do great things for God. मैं हर एक जवान व्यक्ति को यहाँ प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि आपके पास किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, आपको परमेश्वर आपके साथ में हो और उसका अभिषेक आपके ऊपर होने पाए तो सब कुछ संभव है। Hallelujah. हालेलुया। God has got great plans. और परमेश्वर के पास बड़ी योजनाएं हैं। And Pastor John and Philip has got great plans. और पासवान जॉन फिलिप के पास बड़ी योजनाएं हैं। And I want to hear from me tonight that God will fulfill every desire of your heart as you're dedicated to His kingdom. और आज रात मैं चाहता हूं कि आप सुने कि परमेश्वर आपकी हर एक इच्छाओं को पूरा करेगा जैसे हम इस इमारत को समर्पित करते हैं। I started to believe for big things. और मैं बड़ी चीजों के लिए विश्वास करना मैंने शुरू किया। When you start to build for God, और जब आप परमेश्वर के लिए बनाना शुरू करते हैं, you should start to become a dreamer in your life. आप अपने जीवन में सपना देखने वाले होना शुरू हो जाएं। Dream is very important in the life of everyone. हम सभी
के जीवन में स्वप्न देखना बहुत ही जरूरी है। I mean, why should I dream? और मैं क्यों स्वप्न देखूं? Because dream is always bigger than what you could become normally. और जो आप बन सकते हैं उससे कई गुना बड़ा होता है आपका सपने या आपका स्वप्न। Amen. आमीन। God wants you to be a dreamer. परमेश्वर चाहता है कि आप एक स्वप्न देखने वाले व्यक्ति हो। Dream will take you from where you are to where God wants you to be. स्वप्न आपको वहां से लेकर शुरू करेगा जहां पर आप हैं और आपको वहां लेकर जाएगा जहां परमेश्वर चाहता है आपको ले जाने के Are you लिए। a dreamer in your life? क्या आप अपने जीवन में स्वप्न देखने वाले व्यक्ति हैं? Pastors, are you a dreamer in your और life? पासवान, आप क्या एक स्वप्न देखने वाले व्यक्ति हैं जीवन में? Do you know what God has got for you in store? आप जानते हैं परमेश्वर ने आपके लिए क्या रखा है? I believe my job is not over. और मैं विश्वास करता हूं मेरा काम खत्म नहीं हुआ है। I'm 71 years old. और 71 साल के हैं प्रभु के दास। I still keep on dreaming. और मैं अभी भी स्वप्न देखता रहता हूँ। Everything that I wanted to do. हर एक काम जो मैं करना चाहता हूँ। Started Bible colleges in every language. और हर भाषाओं में बाइबल कॉलेज को मैंने शुरू किया। There's so many orphanages across the country. और इस पूरे देश भर में अनाथालयों की स्थापनाएं मैंने की। There's so many schools across state. बहुत सारे स्कूलों की मैंने स्थापनाएं की इस देश Looking में। after the people everywhere I go. और जहां भी मैं जाता हूं लोगों का देखभाल में रखता हूं। Dream has got no limits, my dear आप friends. जानते हैं स्वप्न की कोई सीमाएं नहीं होती I हैं। want to encourage every one of you. Start dreaming. Dream big and God will bless you. मैं आपको आज प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि आप स्वप्न देखना शुरू करें और परमेश्वर आपके लिए वो पूरा करके देगा। What kind of a dream that we should dream? किस प्रकार के स्वप्न हम देखने वाले होने पाए? We should dream according to the character of God. क्या आप परमेश्वर के स्वभाव के अनुसार स्वप्न देखेंगे? Who is your God? कौन है आपका परमेश्वर? I'm going to tell you about some character. If you believe, you can say yes. और Okay? अगर मैं कुछ चरित्र या कुछ स्वभाव के बारे में बताऊंगा, विश्वास करते हैं तो हाँ जरूर बोलें। Our God is a big God. हमारा परमेश्वर एक बड़ा परमेश्वर You है। believe that? क्या विश्वास करते हैं? Our God is a good God. हमारा परमेश्वर एक भला परमेश्वर है। Our God is a great God. हमारा परमेश्वर एक महान परमेश्वर है। You agree with me? क्या आप सहमत हैं? Now I'm going to build. अब मैं बनाने जा रहा हूँ। And how should I build? और मैं क्या बनाऊं? Whenever I should build big. I should be good. And I should be great. और जब भी मैं बनाऊं, मैं बड़ा बनाऊं, मैं भला बनाऊं और मैं महान बनाने पाऊं। Hallelujah. हालेलुया। Because we do it according to the big God that we have. और जो बड़ा परमेश्वर हमारे पास है उसके अनुसार हम करने पाएं। Amen. आमीन। I have done, as you heard, we got an engineering college and all that. Somebody said to me, so what is your dream now? और मैंने जैसे कहा कि हमारे पास एक इंजीनियरिंग कॉलेज है और किसी ने मुझसे पूछा अब तुम्हारा स्वप्न क्या है? I said to them, I want to build a super specialty hospital. और मैंने उनसे कहा कि मैं एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को स्थापना करना चाहता हूं। Well, when you are dreaming, don't limit. Keep on talking. Who cares? और जब आप स्वप्न देख रहे हैं सीमित ना हो, बोलते रहिए, किसको क्या फर्क पड़ता When है? you dream, always believe it doesn't cost you anything in your dream. और जब भी आप स्वप्न देखते हैं इसमें कोई कीमत नहीं, आप देखते रहें। When you wake up from your dream, it is going to cost your life. और जब आप उस सपने से जाग जाएंगे आपके जीवन पूरी लग जाएगी उस पे। So I said to them, I want to build a hospital with 450 beds. और मैंने कहा मैं एक बड़े अस्पताल की स्थापना करना चाहता हूँ 450 बेड के I साथ। want to set aside 100 beds for the poor people. और मैं 100 बेड को गरीब लोगों के लिए अलग करना चाहता हूँ। All the dreams are going on well. The only thing is I don't have any money. और सारे स्वप्न अच्छे हैं लेकिन समस्या यह है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। But I never had money with me. और मेरे पास कभी भी पैसे नहीं रहे When हैं। I started out, I was just on the street with no money in my pocket. और जब मैं सड़कों पे गया सेवकाई करने के लिए मेरी जेब में कोई पैसे नहीं थे। I always used to tell the people, when you have some money, you are stuck with that money. You cannot do anything beyond that. और जब मैं हमेशा क्या जब आपके पास थोड़े पैसे हैं आप उसी से फंस जाते हैं, आप कुछ नहीं कर पाते हैं। But when you don't have any money, but if you have a dream, you can do anything and achieve anything for God. लेकिन जब आपके पास पैसे नहीं होते हैं, आपके पास स्वप्न है तो आप कुछ भी कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। So we got a dream, और हमारे पास एक स्वप्न है a call of God. और परमेश्वर की बुलाहट, So we are running to build something for God. और
हम भाग रहे हैं कुछ बनाने के लिए परमेश्वर के लिए, As you're running, somebody is pulling your shirt from behind. और जैसे आप दौड़ रहे हैं कोई आपकी कमीज को पीछे खींच रहा है, And you turn around. और जब आप मुड़कर देखते हैं God is holding on to your shirt. परमेश्वर आपकी कमीज को थामे हुए है। What is this? और वो क्या है? I'm ready to go. मैं तैयार हूं जाने के लिए। And God says, और परमेश्वर कहता है, before you go and do anything for me, और मेरे लिए कुछ करने से पहले I want you to sit here with me, please. मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ बैठो। I want you to sit down with me because I want to talk to you. मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ बैठो क्योंकि मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। That's number two. दूसरी चीज, Sit down first. आप पहले बैठ जाएं। Amen. आमेन। Why should I sit in God's presence? क्यों मैं प्रभु की उपस्थिति में बैठूं? So that God can speak to us. ताकि परमेश्वर हमसे बात कर पाए। Amen. आमेन। That's where God can deal with our life. और तभी परमेश्वर हमारे जीवन के साथ कार्य कर सकता है। That's when our heart will break. तभी हमारा हृदय टूटेगा। That's when the tears will come down. तभी हमारे आंसू निकलने शुरू होंगे। And there God will show who we are. और परमेश्वर हमें दिखाएगा कि हम कौन हैं। And God will prepare us to do something for और Him. परमेश्वर हमें तैयार करेगा कुछ करने के लिए। When was the last time that you sat in God's presence? वो आखिरी समय कब था जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे? When was the last time that tears came down through your eyes? वो आखिरी समय कब था जब आपके आंखों से आंसू निकलने लगे? When was the last time that your heart was broken? वो आखिरी समय कब था जब आपका हृदय टूट गया था? May the Lord deal with us first, and then we'll be prepared and we'll be worthy to do His job. प्रभु हमारे साथ कार्य करने पाए ताकि हम योग्य बन जाएं उस कार्य को करने के लिए। Number three, तीसरी चीज, you should count the cost. आप उस खर्च को जोड़ लें। This is Jesus saying, by the way. और ये यीशु मसीह ने कहा है, Jesus says, और यीशु कहता है, before you go and do something for me, मेरे लिए कुछ भी करने से पहले I want you to count the cost. मैं चाहता हूं कि तुम उस खर्च को जोड़ लो। How many of you know that God loves counting? आप में से कितने लोग जानते हैं कि परमेश्वर पसंद करता है गणना करना या गिनती करना? Do you know God loves counting? आप जानते हैं परमेश्वर गिनती करना पसंद करता है, The creator of the universe, और जो सृष्टि करता है संसार का, He loves counting. उसे गिनती करना बहुत ही पसंद है। Maybe you don't believe me, let me prove it to you. शायद आप विश्वास ना करें, लेकिन मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा। Listen to me, please. मुझे सुने। God loves counting so much. और परमेश्वर गिनती करना इतना पसंद करता है, God named one of the books of the Bible Numbers. परमेश्वर ने बाइबल की एक किताब का नाम गिनती रखा है। You need any more proof? क्या आपको और सबूत चाहिए? Amen. Amen. All book is called Numbers. और सारी किताबें जो है उस गिनती है। How many of you read the book Numbers? कितने लोगों ने इस गिनती की किताब को पढ़ा है? How many of you will agree with me today? कितने लोग मेरे साथ सहमत हैं आज? Honestly, the Numbers is the most boring book in the Bible. और सच्चाई में गिनती वो किताब है जो सबसे बोरिंग किताब है बाइबल में। See, I love them looking all like saints. Pastor Abraham is the guy who doesn't believe in the Bible. He says it's boring, but it is true. और सारे संत लोग आप बैठे हैं और आप कहते हैं कि पास अब्राहम कह रहे हैं कि गिनती जो एक बोरिंग किताब है, और ये सच में है। How do you read that book? आप उस किताब को कैसे पढ़ते हैं? Number after number after number. और एक गिनती के बाद एक गिनती और गिनती हम देखते हैं। 225,733. You can say any number you like, okay? 2,25,733 आप इस गणना को वहां देख सकते हैं। Not only that, he will repeat that again. और वो उसे फिर दोहराता है। I said, I read it. Why are you repeating it? और मैंने उसे पढ़ा है, फिर क्यों दोहरा रहे हो? So you read the first chapter, आप पहले अध्याय को पढ़ते हैं, second one and third और one. दूसरा और तीसरा, I can't even read these numbers. और मैं इन गिनतियों को नहीं पढ़ पाता हूँ। You tell God, God, you read the rest. I'm going to the next book. और आप प्रभु से कहें कि आप पढ़ लें और मैं आगे की किताबों में बढ़ता हूँ। Amen. आमेन। God loves counting. परमेश्वर को गणना पसंद है। Amen. आमेन। You know, the people, the pastors always say, you know, I live by faith. I don't count anything. और I don't calculate anything because I'm a man of faith. And Jesus says, stop that. और पासवान लोग कहते हैं कि मैं एक विश्वास से जीने वाला व्यक्ति हूँ, मुझे गणना या गिनती पसंद नहीं है, लेकिन यीशु कहता है इसे बंद कर दो। Amen. आमेन। God says, I love counting, and counting is the greatest act of faith. और परमेश्वर कहता है मुझे गिनती पसंद है, और गिनती विश्वास का सबसे बड़ा कार्य है। You cannot just jump from the edge of
of a building and say, my God is going to catch me down there. और आप एक इमारत की चोटी से कूद कर ये नहीं कह सकते कि परमेश्वर मुझे थाम लेगा। Please count the number of stories before you jump from there. और इस आप कूदने से पहले देखें कि कितनी इमारतें हैं, संख्या की आप देख लें। Amen. आमेन। Your faith will take you to heaven, आपका- but we will bury your body. आपका विश्वास आपको स्वर्ग ले जाएगा, लेकिन हम आपके शरीर को दफना देंगे। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। The Bible says, Jesus says, every hair of your head is numbered. बाइबल कहती है आपके सर पे जितने बाल हैं उसकी गिनती परमेश्वर ने कर रखी है। When you got ready to come for this function, ओ इस सब में आने के समय you took your comb and you're combing your hair. आप जब यहाँ आने की तैयारी करते अपनी कंघी ली You're looking at your face and you look so beautiful. और आपने अपने चेहरे को देखा, कहा बहुत ही सुंदर लग रहा हूँ, And you looked at the comb and there's so many hair. और आपने इस कंघी को देखा, बहुत सारे बाल उस कंघी में हैं, And you pulled that and you put it in the waistband. और आपने उसे निकाल कर कूड़ेदान में डाल दिया। Do you know how many hair was there in that comb? आप जानते हैं कि उस कंघी में कितने बाल थे? No. नहीं। But God says लेकिन परमेश्वर कहता है that was 17 hair that came out of your head. और तेरे सर से 17 बाल है जो निकल कर आए हैं। Hallelujah. हालेलुया। Amen. Amen. God says you count every step of my life. और परमेश्वर कहता है मैं तेरे जीवन के हर एक कदम को मैं गिनता हूँ। You got out of your car, और आपने कार लिया, came to the lift, आप लिफ्ट पे आए came over here, और ऊपर आए and you came to this place. और आप इस जगह पर आए। Do you know how many steps that you can walk? आप जानते कितने कदमों को आपने लिया है? You don't know. आप नहीं जानते, My God was walking with you. लेकिन मेरा परमेश्वर आपके साथ चल रहा था। My God said that was 229 steps. और मेरा परमेश्वर कहता 229 वो कदम है जो तूने लिए हैं, Every hair he is numbered. और हर एक बाल की गिनती है, Every step that you make is numbered. और हर एक कदम जो आप लेते हैं उसकी गिनती है। Why? क्यों? Because you are precious to him. क्योंकि आप उसके लिए कीमती हैं। You are not somebody who is lost in the crowd. आप ऐसे कोई नहीं जो झुंड में खो गए You are हैं। not somebody that nobody cares. आप ऐसे कोई नहीं जिसका कोई ख्याल नहीं रखता है। To God that you are so special. ओ परमेश्वर के लिए आप बहुत ही कीमती हैं। God says every step of your way I counted and I make sure that your life is safe. और परमेश्वर कहता है आपके मार्ग के हर कदम मैंने तय कर लिए हैं और परमेश्वर आपको आशीष करेगा। Let me close my Bible so that I can finish. और मैं अपने बाइबल को बंद करना चाहता हूं ताकि इसे खत्म कर पाऊं। Whenever I preach, when I'm getting close to finish, I will close my Bible. और जहां भी मैं प्रचार करता हूं, खत्म होने का समय आता मैं अपने बाइबल को बंद कर देता हूं। Why the preachers close the Bible? क्यों प्रचारक अपने बाइबल को बंद कर देते हैं? So that you can feel happy. ताकि आप खुश हो जाएं। Amen. आमेन। You will look at me and say, "Oh my God, we thought that he'll be preaching till midnight, but now thank God he closed his Bible." ओ परमेश्वर, मैं सोच रहा था कि आधी रात तक प्रचार करेंगे, लेकिन धन्यवाद उन्होंने अपने बाइबल को बंद कर दिया So है। that gives you a false security. और ये आपको एक झूठी आशा या सुरक्षा दे But the देता है। only problem is I was not looking that much in the Bible. समस्या ये है मैं बाइबल में उतना देख नहीं रहा But I था, will finish it anyway. लेकिन मैं फिर भी खत्म करूंगा। My last point is this. मेरा अंतिम पॉइंट ये है, He said, you should finish the job. और तुम अपने काम को खत्म करो। Everybody listen to me, please. हर एक व्यक्ति मुझे ध्यान से सुने। 90% of the people in the world और will start something, but they will never finish. इस दुनिया में 90% लोग कुछ शुरू करते हैं लेकिन उसे खत्म नहीं करते हैं। Whether it is a business, whether it is a shop, whether it is anything, people will begin. They are so excited to begin, but they don't finish. चाहे वो एक व्यवसाय हो या दुकान हो, लोग बड़े उत्तेजित होते हैं, शुरू करते हैं लेकिन उसे खत्म नहीं करते हैं। Friends, starting is exciting, but finishing is ugly. और दोस्तों, शुरू करना बड़े उत्तेजना से भरा होता है लेकिन खत्म करना बड़ा ही कुरूप या मुश्किल होता है, It is difficult. और बहुत ही मुश्किल होता Have है। you heard pastors coming to town? और आपने देखा है पासबानों को नगरों में आते हुए, They will come and say, God gave me a vision to come to Gurgaon. और परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया गुड़गांव में आने के लिए। Oh, they will take a rent a house, और अब आप वो कमरा लेते हैं किराए पे, and there they are working. और वो काम कर रहे हैं, After 6 months, और 6 महीने के बाद he's packing up his bags. और वो अपने बैग को सारा समेट लेता है He's ready to go. और वो जाने को तैयार हो जाता है। Pastor, ओ पासबान, where are you going? आप कहाँ जा रहे हैं? Oh, I'm going to Panipat. और अब मैं पानीपत जा रहा हूँ। Why? क्यों? You came here
saying that God gave you a आप vision. यहाँ पर आए ये बोलकर कि परमेश्वर ने आपको दर्शन दिया है, So darshan was only the high-rising buildings of Gurgaon. और वो दर्शन केवल उन ऊंची इमारतों का था जो गुड़गांव में था। He did not realize it's so hard to do work in this place. वो इस बात को नहीं समझ पाए बड़ा मुश्किल है यहाँ पे काम करना, Starting is easy, और शुरू करना आसान है but finishing is difficult. लेकिन खत्म करना मुश्किल है। But Jesus said, लेकिन यीशु कहता है you not only begin, but you should finish. वो ना केवल शुरू करेगा बल्कि उसे खत्म भी करेगा। Amen. आमीन। He is the author and the finisher of our faith. वो हमारे विश्वास का कर्ता और सिद्धक है। Hallelujah. हालेलुया। He is the one not only begins, but he finishes. और वो ना केवल वो शुरू करता है बल्कि उसे खत्म भी करता He है। is talking to the woman at the well in Samaria. और वो सामरी की स्त्री से वो बात करता है, And he says like this, और वो इस तरह से कहता है, my food is to do the will of him who sent me. और मेरा भोजन उस पिता की इच्छा को करना है जिसने मुझे भेजा है। That's only half of it. और ये उसका आधा ही है। Then he says, और फिर वो कहता है and to finish the job. और उस काम को खत्म करना है, Not only to do his will, ना केवल उसकी इच्छा को करना but to finish his job. और अपने काम को करना खत्म करना भी है। Let me finish it off with this. और मैं इसके साथ खत्म करना चाहूंगा, I believe in the history of the universe, और मैं इस संसार के इतिहास में विश्वास करता in the हूँ, history of the human race. और इस मानव जाति के इतिहास में विश्वास करता The हूँ। greatest triumphant cry that the human race have ever heard was made on the cross of Calvary. और मानव जाति ने अगर सबसे बड़ी पुकार सुनी होगी वो क्रूस पर सुनी होगी, Hanging on 3 nails, और उस 3 कीलों पे वो लटके हुए थे, between through 2 robbers, और 2 चोरों के मध्य में लटके हुए थे, gasping for breath, और सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, connecting the sinful human race to the Father. और मानव जाति जो पाप में है उसे सही कर रहा पिता के पास लाकर, And all the strength that he had within himself. और जो सारा बल उसके अंदर जो था, He called out and he said like this. और वो चिल्लाकर इस तरह से कहता है, He said, it is finished. और ये पूरा हुआ है। Hallelujah. आमीन। There's nothing more he needed to do. और कुछ करने की जरूरत नहीं है, The price for sin was paid on the और cross. पाप की कीमत पैसे दे चुके हैं वहां पे, The devil was beaten on the और cross. शैतान को क्रूस पे हरा दिया गया है। God was united with man on the cross. परमेश्वर मनुष्य के साथ एक हो चुका है क्रूस पर, That is how Jesus finished. और ये हमारा यीशु है जिसने पूरा किया। If any man intend to build a tower, अगर कोई व्यक्ति गढ़ बनाने की मनसा रखता है, let him sit down first वो पहले बैठ जाए and count the cost और खर्च को जोड़े, so that he can finish the work. ताकि उस काम को वो खत्म कर सके। May the Lord help every one of us प्रभु हम सबकी मदद करने पाए, to be a builder, ताकि हम एक बनाने वाले होने पाए, wait in God's presence, प्रभु की उपस्थिति में इंतजार करें, being a person who will count the cost, एक ऐसे व्यक्ति हो जो अपने कीमत को जोड़ने पाए, and the few of the people who will finish the job. और कुछ कम लोग होते हैं जो अपने कार्यों को पूरा खत्म करते हैं। God bless you real good. प्रभु आपको आशीष करने पाए। I'm going to read one verse and we're going to pray and dedicate this building. मैं एक आयत को पढ़ूंगा, उसके बाद प्रार्थना करूंगा और इस इमारत को प्रभु के हाथ में सौंपूंगा। John mentioned about David wanting to build the temple. और पासवान जॉन ने बताया कि दाऊद की इच्छा थी परमेश्वर के मंदिर को बनाने के लिए, But God said, you have been shedding too much of blood, so let my son, your son, build the temple. लेकिन परमेश्वर ने कहा तेरा हाथ खून से लथपथ है, अब तेरा पुत्र इस मंदिर को बनाने पाए। David called Solomon और दाऊद सुलेमान को बुलाता है, and he showed him the gold, the silver, the bronze, and everything that was needed to build the temple, which he has collected and kept it ready. और वो उसे सोना और चांदी और तांबा और हर एक चीज दिखाता है जो उसने इकट्ठा करके रखा था उस मंदिर को बनाने के लिए। We cannot count the amount or the cost of the gold that David had for the temple. और उस मंदिर के लिए जो सोना खर्च किया गया उसकी कीमत हम जोड़ नहीं सकते जो दाऊद ने वहां इकट्ठा किया था। And Solomon built the most beautiful building, और not just a temple. The greatest architecture of that time
was built by Solomon. और सुलेमान ने ना केवल एक मंदिर को बनाया बल्कि बहुत ही सुंदर इमारत को खड़ा किया जो उस समय की सबसे बड़ी कल्पशील थी वहां पे, Building was ready. और इमारत तैयार थी। Time to dedicate the temple. अब समय है उस इमारत को समर्पण करने के लिए, Standing inside the temple, और वो मंदिर के अंदर खड़े हैं lifting up his holy hands. और अपने पवित्र हाथों को वो उठा के खड़े हैं। He prayed a long prayer before God. उसने पिता के सामने एक लंबी प्रार्थना की। We're going to read one verse and we're going to pray and dedicate this amazing church that God has given to the people of this Bible believing church. और हम उस एक आयत को पढ़ेंगे और इस सुंदर से इमारत को परमेश्वर के हाथ में सौंपेंगे जो परमेश्वर ने BBCI के हाथों में दिया Let me है। read that one verse from 1 Kings chapter 8. पहला राजा 8वें अध्याय से मैं वो पढ़ना चाहूंगा। Amen. आमीन। And we are going to read verse 26 and 27. और पहला राजा 8वां अध्याय 26 और 27वीं आयत। And this is the prayer of Solomon. और ये सुलेमान की प्रार्थना थी। And now I pray, O God of Israel, that your word come true, which you have spoken to your servant David my father. इसलिए अब है इज़राइल के परमेश्वर, अपना जो वचन तूने अपने दास मेरे पिता दाऊद को दिया था उसे सच्चा सिद्ध कर। But will God indeed dwell on the earth? Behold, heaven and the heaven of heavens cannot contain you. How much less this temple which I have built? क्या परमेश्वर सचमुच पृथ्वी पर वास करेगा? स्वर्ग में वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी तू नहीं समाता, फिर मेरे बनाए हुए इस भवन में कैसे समाएगा? The first part of the next verse. और पहला भाग जो अगली आयत का, Yet regard the prayer of your servant and his supplication. तो भी है मेरे परमेश्वर यहोवा अपने दास की प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट की ओर कान लगाकर। I won't read the rest of the chapter, which is his prayer. If I did that, Pastor John would decide that I will never invite this guy ever again into this place. और अगर मैं उसकी प्रार्थना को पूरा पढ़ दूं तो पासवान जॉन निर्णय कर लेंगे कि मैं इस व्यक्ति को कभी आगे प्रचार पे नहीं बुलाऊंगा। I hope that you will invite me sometime to come back. You never know. But let me be a good man as I finish. और मैं विश्वास करता हूं कि वो कभी मुझे बुलाएंगे, लेकिन जैसे मैं खत्म करता हूं एक भला व्यक्ति होने पाऊं। As I said, the greatest architecture of that time. जैसे मैंने कहा उस समय का सबसे बड़ा कल्पशील व्यक्ति, Than any church building that we will ever see anywhere in the world. और दुनिया में कहीं भी अगर हम कलीसिया की इमारतों को देख सकते हैं उससे कई गुना बढ़कर। Solomon said, I know this is not suitable for और you. सुलेमान कहता है मैं जानता हूं ये तेरे लिए, तू उसमें समा नहीं I know सकता। that you won't dwell in this place. मैं जानता हूं कि तू उसमें समा नहीं सकता, But still I pray that he should answer our prayers, our supplication, and fill this place with your presence. लेकिन मैं प्रार्थना करता हूं और गिड़गिड़ाता हूं कि तू मेरी प्रार्थना को सुन और अपनी उपस्थिति से इस जगह को भर दे। Talks about salvation, healing, famine, war, everything in that prayer. और उस प्रार्थना में उद्धार और चंगाई और अकाल से मुक्ति सारी बातें उस प्रार्थना में है। We are together going to pray and dedicate this amazing place that God has given to a group of believers in this church to worship God. और हम मिलकर अब इस इमारत के लिए प्रार्थना करेंगे जो परमेश्वर ने एक प्यारी सी जगह इन विश्वासियों को दी है ताकि परमेश्वर ने आशीष करने Would you पाए। please stand with me? आइए हम सब खड़े हो जाएं, Lift up your holy hands towards heaven. अपने पवित्र हाथों को उठाएं स्वर्ग की ओर। Though I'm going to pray a prayer of dedication, मैं समर्पण की प्रार्थना इस समय करूंगा। I want every one of you to join with me, please. मैं चाहता हूं आप सब मेरे साथ जुड़ जाएं इस समय, And let it be a prayer of dedication by all of us. और ये प्रार्थना समर्पण की हम सब के द्वारा होने पाए। Just like on that day the Shekinah came down. और जैसे उस दिनों में वो शकाइना उतर कर आई, Let God's presence come down tonight. आज रात परमेश्वर की उपस्थिति उतर कर आने पाए। Let the power of God be manifested here ओ tonight. परमेश्वर की सामर्थ आज रात प्रकट होने पाए, Let people get healed in this place. ताकि इस जगह में लोग चंगे होने पाए, Let sinners come to know Jesus ताकि Christ. पापी लोग यीशु मसीह को जानने पाए, That miracles and wonders will take place in this ताकि place. चमत्कार और अद्भुत काम इस जगह में होने पाए, Because this is the temple of God. क्योंकि ये परमेश्वर का मंदिर This है is the house of और God. ये परमेश्वर का भवन This है is where God's people cry out to और ये God. वो जगह है जहाँ परमेश्वर के लोग चिल्लाते और रोते हैं। Let us pray together. आइए मिलके प्रार्थना करें। Heavenly Father, और स्वर्गीय पिता, we stand before your presence tonight. हम आपके उपस्थिति में खड़े हैं आज रात, With our hands lifted up towards heaven. अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर With our hearts crying out to you, Lord.
हमारा हृदय आपकी ओर रोता है परमेश्वर। God, thank परमेश्वर you for granting this place for this church. और धन्यवाद इस कलीसिया को ये जगह देने के लिए, Every money that was spent, और हर एक पैसा जो खर्च हुआ है, every effort that has been put in. हर एक कोशिश जो यहाँ पे डाली गई है, The only purpose is to glorify the name of the Lord Jesus Christ. केवल मकसद ये था कि प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा मिलने पाए। Tonight I join with all the servants of God आज here. रात आपके दासों के साथ मैं मिलकर प्रार्थना करता हूँ, Join with Pastor John and Philip पासवान जॉन और फिलिप के साथ मिलकर, and the members of this church. इनकी कलीसिया के सदस्यों के साथ मिलकर Tonight we bless this place, Lord. आज रात हम इस जगह को आशीष करते हैं। Let your presence come down. आपकी उपस्थिति उतर कर आए, Let the anointing be manifested in this ओ place. अभिषेक प्रकट होने पाए, That God's name will be ओ glorified. परमेश्वर के नाम को महिमा मिलने पाए। Tonight, as a servant of the Lord Jesus Christ, आज रात प्रभु यीशु का दास होते हुए I bless this building. मैं इस इमारत को आशीष देता हूँ, Bless this church. मैं इस कलीसिया को आशीष करता हूँ, Bless the man of और God. मैं प्रभु आपके दास को आशीष बोलता हूँ, Bless the pastors who work with और them. जो पासवान मेरे साथ उनको मैं आशीष बोलता हूँ। And I bless everyone in this movement. इस इमारत में हर एक व्यक्ति को मैं आशीष बोलता हूँ, And I bless them all in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. और मैं आए हुए सभी लोगों को पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आशीष बोलता We हूँ, dedicate this building for your glory. और हम इस इमारत को आपकी महिमा के लिए समर्पण करते Let the हैं। Lord's name be ओ glorified. प्रभु के नाम की महिमा होने पाए, In Jesus' name. यीशु के नाम में। Join with me clapping your hands. आइए ताली बजा के धन्यवाद करें। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। इस भवन को प्रभु के हाथ में समर्पण कर कर दिए हैं। आइए हमारे हाथ बढ़ाकर प्रभु को धन्यवाद करें सब मिलकर कुर्बान। प्रेज़ यू जीसस, हालेलुया। और एक और छोटा से सेवा भाई प्रभु का दास के साथ है। पास्टर जी आपको इस ऑफिस तक जाकर पास्टर जॉन के साथ वो भी एक बार प्रार्थना करके समर्पण कीजिए। तब तक हम एक बहुत अच्छा प्लीज बी सीटेड। थैंक यू। आप सब बैठ जाइए। प्रभु का दास पास्टर अब्राहम, पास्टर जॉन और 2-3 प्रभु का दास जाएंगे ऑफिस में। हम सब खड़ा होने का जाकर प्रार्थना करके वो भी समर्पण कर पाएंगे। तब तक हम एक गीत को सुनेंगे। हमारे साथ पास्टर डारियल जॉर्ज हैं। मैं विनती करूंगा आपको एक स्पेशल गीत आप सबके लिए प्रस्तुत करें। You leave with us in the office or not? ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ. കൂടെ നിൽക്കാം. Let us pray. Heavenly Father, we rejoice in your presence, Lord. Not only a nice place to worship, but an office where the work can be done, the administration, the running of the ministry, and all they wanted to do in the future. I thank you for the vision that you given to Pastor John and his wife and the children and the movement. I pray your blessing will be upon him, upon everyone who is going to work in this office, Lord. God's name will be glorified. Lord, tonight we bless this office and I dedicate this office for your glory. Everything that will be done here should bring glory and honor to your name. Lord, I bless my brother, Lord. Lord, I bless this office in Jesus' name. Amen and amen. Amen. Thank you. It's a pantry. The pantry. കണ്ടു നിങ്ങളെ അടുക്കള കയറ്റിയില്ല അതുകൊണ്ട് Could already open. Okay.
की बाट जोने वाले लज्जित नहीं होंगे कभी, उत्तर जरूर पाएंगे, आशा न टूटे कभी। प्रभु की बाट जोने वाले लज्जित नहीं होंगे कभी, उत्तर जरूर पाएंगे, आशा न टूटे कभी। कर इंतजार जब तक न पाए तू चमत्कार। कर इंतजार जब तक न पाए तू चमत्कार। प्रभु की बाट जोने वाले निश्चित समय तेरा दर्शन पूरा होगा। निश्चित समय तेरा दर्शन पूरा होगा। शक ना करे पूरा होगा, देर भी लगे तो भी कर इंतजार। शक ना करे पूरा होगा, देर भी लगे तो भी कर इंतजार। गाइए, कर इंतजार जब तक ना पाए तू चमत्कार। गाइए, कर इंतजार जब तक ना पाए तू चमत्कार। प्रभु की बाट जोने वाले लज्जित नहीं होंगे कभी, उत्तर जरूर पाएंगे, आशा न टूटे कभी। प्रभु की बाट जोने वाले सब कुछ खो जाए, अपने भी छोड़ जाए। सब कुछ खो जाए, अपने भी छोड़ जाए। वफादार है तेरा प्रभु, शीघ्र ही आशीषें दे तेरे द्वार। वफादार है तेरा प्रभु, शीघ्र ही आशीषें हैं तेरे। आइए, कर इंतजार जब तक ना पाए तू चमत्कार। कर इंतजार जब तक ना पाए तू चमत्कार। प्रभु की बाट जोने वाले लज्जित नहीं होंगे कभी, उत्तर जरूर पाएंगे, आशा न टूटे कभी। प्रभु की बाट जोने वाले छुटकारा जब तक न हो, घुटनों में कर इंतजार। तेरा छुटकारा जब तक न हो, घुटनों में कर इंतजार। बल पाओगे, उठ खड़े होंगे, उकाब के समान उड़ जाओगे। बल पाओगे, उठ खड़े होंगे,
पक्षी समान उड़ जाओगे। कर इंतजार, जब तक ना पाए, जब तक ना पाए तू चमत्कार। कर इंतजार, जब तक ना पाए तू चमत्कार। प्रभु की बाट जोहने वाले लज्जित नहीं होंगे कभी, उत्तर जरूर पाएंगे, आशा न टूटे कभी। प्रभु की बाट जोहने वाले लज्जित नहीं होंगे कभी, उत्तर जरूर पाएंगे, आशा न टूटे कभी। लास्ट टाइम, कर इंतजार, जब तक ना पाए तू चमत्कार। कर इंतजार, जब तक ना पाए तू चमत्कार। प्रभु की बाट जोहने वाले। Praise the Lord, praise the Lord. Thank you so much. बहुत मीनिंगफुल एक सॉन्ग प्रभु का दास मेरे सामने प्रस्तुत किया। ताली बजाकर प्रभु का दास को भी हम प्रोत्साहन करें। प्रेज़ गॉड। तो अब हम हमारे इस इनागुरेशन मीटिंग का आखिरी समय तक आए हैं। मेन सर्विस ख़त्म हो गए, लेकिन इसके साथ साथ कुछ फेलिसिटेशन का शब्द बोलने के लिए कुछ प्रभु का दास को मैं बुलाना चाहता है। हमारे पास ज़्यादा समय नहीं, एक मिनट प्रभु के दास लोग लेकर कुछ प्रोत्साहन के बातें फैसिलिटेशन की तौर से बता सकता है। रेवरेंड रेमंड मसी and Reverend Deepak Lal, Reverend Wilson Joseph, Reverend Brito, Pastor Gicho Varghese, and Reverend James Michael. Praise God. ये प्रभु के दास लोग जो नाम बुलाए हैं, एक निमिष उसको समय बताने का समय नहीं, उनको सब जानते हैं हम कितना समय आगे बढ़ चुके हैं। उसके आधार पर प्रेज़ गॉड समय लेकर कुछ बातें बताए। प्रेज़ गॉड। प्रभु आशीष करें। पहले रेवरेंड रेमंड मसी आएंगे। प्रेज़ गॉड। इसके बाद रेवरेंड दीपक लाल। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि गुड़गांव में परमेश्वर की कलीसियाएं बढ़ रही हैं, और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं सेइंग पास्टर अब्राहम आफ्टर 30 इयर्स इन पर्सन। वैसे मैंने स्टेज से देखा 30 years back you had a church in YMCA called Capital Christian Center. Me and my sister really wanted to join the church, and we met him. He said, no, you're very well good in your own church. और मेरे को ये बात याद है कि खुदा बाप ने इनको एक ग्रुप लेकर आए थे, और उसका नाम तलीम था, और वो सिताइश और स्तुति करने के लिए वहाँ पर आए थे। एंड गॉड रियली टच मी थ्रू द होली गोस्ट। और मैं विश्वास करता हूँ जो काम परमेश्वर ने दिल्ली में शुरू किया पास्टर साहब के द्वारा और बहुत से खुदा के खादिम के द्वारा, गुड़गांव कुछ साल पहले, अगर आपको याद हो, करीब 10-15 साल पहले ये शहर मॉल सिटी माने जा करता था नॉर्थ इंडिया का। मैं विश्वास करता हूँ आने वाले दिनों में ये परमेश्वर के नाम से जाना जाएगा, और उसके लिए एक वचन है जो मैं विश्वास करता हूँ। ये एक पहली कड़ी है या दूसरी कड़ी, मुझे नहीं मालूम, पर मैं खुदा के खादिम पास्टर जॉन एम फिलिप और इनकी कलीसिया को, BBCI को और उनके सेवकों को और सहयोगी सेवकों को उभारना चाहता हूं, और मैं विश्वास करता हूं कि खुदा का काम यहां से बढ़ता चला जाएगा। मेरे दिल में ये प्रार्थना है कि जितनी बिल्डिंग्स यहाँ पर हैं और जो भी कमर्शियल एंटिटीज़ हैं या रेजिडेंशियल एंटिटीज़ हैं, वहाँ पर उन जगहों पे परमेश्वर की कलीसिया होगी। द्वारका एक्सप्रेसवे, हिंदी में इसका मतलब ये है द्वारका। मैंने पूछा किसी से द्वारका का मतलब क्या है। somebody said that it is actually gateway to heaven. द्वारका का मतलब ये होता है कि स्वर्ग का दरवाज़ा, और मैं विश्वास करता हूँ वो स्वर्ग का दरवाज़ा
आने वाले दिनों में इन जगहों पे अद्भुत रीति से खुलेगा। आपने ये वचन बहुत बार पढ़ा होगा जो मीका नबी की किताब उसके 4 अध्याय की 2 आयत में लिखा है, और बहुत सी जातियों के लोग जाएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं, तब हमको अपना मार्ग सिखाएगा और हमें अपने पथों पर चलेंगे, क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सहीओन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। ये जितने पहाड़ हैं, बिल्डिंग्स हैं, यहाँ पर लोग परमेश्वर को ढूंढते हुए आएंगे और वो आप खुद कहेंगे कि आओ हम परमेश्वर के भवन के पर्वत पर चलें। और मैं विश्वास करता हूँ कि इन सब पर्वतों पे जितने भी यहाँ पर कॉर्पोरेट एंटिटीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, ऑफिसेज हैं, बिजनेसेस हैं, उन सब पहाड़ों के ऊपर परमेश्वर का पहाड़ स्थिर किया जाएगा। और ये विश्वास करिए कि दिस इज़ नॉट द बैड टाइम फॉर हरियाणा। आपने प्रार्थना किसी और बात के लिए करी थी, पर आपको मालूम है परमेश्वर की इच्छा कुछ और है। इतने सताव में, इतने ऑपोजिशन के बावजूद भी परमेश्वर के भवन का पर्वत उनके ऊपर किया जाए। I believe the good times have not ended, they have just started. और ये कलीसिया के लिए खुशखबरी है कि जब परमेश्वर ने यहाँ पर इस कलीसिया को इस रीति से इतनी खूबसूरत भवन दिया है, ऐसे ही आने वाले दिनों में जैसे बहन परसिस ने बताया, आप सबों के पास अपने भवन होंगे और लोग धाराओं की नाई, जैसे यशायाह में लिखा है, परमेश्वर के भवन की ओर अग्रसर होने पाए। फिर से मैं पास्टर जॉन एम फिलिप, उनकी पत्नी को, कलीसिया को और आप सबों को इस बात के लिए बहुत सी खूब शुभकामनाएं। असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च इन इंडिया के दिल्ली जोन, जिसका मैं कोऑर्डिनेटर हूं, आप सबको उनकी तरफ से और बिशप टोनी की तरफ से आप सबों को खुशखबरी के लिए, इस खुशी के मौके के लिए मुबारकबाद देना चाहता हूं। एंड थैंक यू वेरी मच। मे दिस प्लेस बी अ गेटवे टू हेवन। प्रेज द लॉर्ड। 93 में मैं यहाँ पर आया, दिल्ली में कैंपस क्रूसेड की ट्रेनिंग करने के बाद, और तब से मैं रेवरेंड फिलिप को जानता हूँ। और तब यहाँ पर इनका एक स्कूल था छोटा और एक चर्च था। एंड फ्रॉम देयर हाउ गॉड हेल्प्ड हिम एंड हाउ गॉड इज़ विद हिम and bringing him higher and higher and higher। और मैं पूरा विश्वास करता हूँ और मैंने देखा है कि जो कुछ भी पास्टर रेवरेंड डॉक्टर अब्राहम ने जो भी बातें शेयर करी हैं, एवरीथिंग वी कुड सी इन हिज लाइफ। जैसे he believes he is a builder, he believes that he takes initiative, he is a very good dreamer and he sits with the Lord। और परमेश्वर उनको आगे बढ़ाता जा रहा है, इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। एंड ही इज़ बीन एन इंस्पिरेशन फॉर मी एंड फॉर मैनी मोर पीपल। थैंक यू सो मच। प्रभु की स्तुति हो सबको। जय मसीह की। मैं बहुत आनंदित हूँ और आई एम रियली ग्लैड एंड हॉनर्ड टू बी हियर इन दिस एक मंगलमय समय में आप लोगों के साथ खड़े होने के लिए मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि आज एक स्पेशल डे है, एक स्पेशल प्लेस में हम सब लोग आया हुआ है। मेरा विचार से ये माड़ में ये शायद पहली बार ऐसे एक चर्च का उद्घाटन हो रहे। शायद कई जगह में होगा, लेकिन ये अपना जगह पास्टर जॉन फिलिप ने खरीदा है, ये अपना जगह है। और इस माड़ में ये प्रभु का सेवकाई के लिए एक जगह प्रभु ने उनको दिया है। और मैं प्रार्थना करता हूँ इस जहाँ एक लाइट हाउस के समान, क्योंकि ये मॉल है, काफ़ी लोग आते हैं तरह तरह सिनेमा देखने के लिए और शॉपिंग करने के लिए। लोग इधर आए और जो अंधकार में रहने वाला लोग इस लाइट हाउस को देखकर जो सच्चा जगत के ज्योति प्रभु यीशु मसीह को पहचान पाए और स्वीकार
कर पाए। मैं प्रभु की धन्यवाद देता हूँ पास्टर जॉन फिलिप के लिए, क्योंकि 1986 हम सारे एक साथ ग्रेस बाइबल कॉलेज में पढ़ा है। उस समय हम इस रास्ता में जाते तो पूरा जंगल था, कोई उम्मीद नहीं इधर ऐसे कुछ चीज़ होने वाला है, लेकिन प्रभु समय पर सब कुछ पूरा किया है। और पास्टर जॉन फिलिप के बारे में देखने के समय जो हमारे समय जो इवेंजलिज्म लीडर था, इनके अंदर इतना जो ताकत था, क्षमता था, किसी के साथ भी जाकर प्रभु की वचन बताते थे। हम लोग थोड़ा डर कर खड़े होता था तो, लेकिन ये तो कोई बात नहीं, वो ऐसे जाकर हाँ यीशु मसीह जिंदा है, ऐसे हिम्मत के साथ प्रभु का वचन शेयर करते थे। और आज उसका फल हम देख रहे। आज प्रभु ने प्रभु के दास को ऐसे एक जगह दिया है गुड़गांव में प्रभु की स्तुति और आराधना करने के लिए। डॉक्टर अब्राहम ने एक चीज़ बताया था, तो 86 एक पेक्यूलियर बात है, तो दैट इज़ वेरी ट्रू एक्चुअली। यू नो, माई सेल्फ, Pastor David, Pastor John Philip, and there are many other people. We graduated from Grace Bible College in 1989, 86 to 89, and 99% of the graduates, they are in the ministry. And you know, really it is a peculiar batch. And we know it says in the 2nd Chronicle chapter 7 verse 14 to 16, it says that you know, मेरा लोग अपने आप को नम्र करके प्रभु की उपस्थिति में आकर प्रार्थना करे तो स्वर्ग से परमेश्वर उस प्रार्थना का सुनेंगे। इसमें ऐसे लिखा है, now mine eyes shall be upon and my ears attend to the prayer that is made in this place. For now I have chosen and consecrated this house that my name may be there forever. My eyes and my heart, God says, my eyes and my heart will be there all the time. प्रभु की स्तुति हो। वही सुलेमान ने फिर से सुलेमान को परमेश्वर ने बोला था, और सुलेमान में यही बोला जो प्रोवेब्स 16:3 को, कमिट योर वर्क टू द लॉर्ड एंड योर प्लान्स टू बी एस्टैब्लिश्ड। हालेलुया। यही पास्टर ने किया है, उनके सारे योजना प्रभु के हाथों में समर्पित किया और प्रभु ने उनके मनोकामना को पूरा किया है। हालेलुया। माय सिंसियर कंग्रेचुलेशन टू पास्टर जॉन फिलिप एंड हिज टीम ऑन योर हार्ड एंड सक्सेस। यू आर द proof and the good things to come, those who are willing to sacrifice to reach a worthwhile goal. You have the creativity and determination to do whatever you can dream. May the God continually bless you and make you a success in all your ways and bring thousands of people to Christ. I congratulate you and may the God bless you all. Thank you. यहाँ इस मंच में आने वाले प्रभु के दासों की महिमा को देखकर रोशनी भी झुक गया है। भाई लाइट को कोई ऊपर कर देना, ठीक है? हालेलुया। दैट वाज सपोज्ड टू बी आइस ब्रेकर। बाय द वे, पास्टर, हाउ मेनी चर्चेस वी हैव? 2000 प्लस चर्चेस। आई एम सॉरी, 4000। गणित में थोड़ा कमजोर है हम। 4000 प्लस एंड आई थिंक द सेकंड बिगेस्ट चर्च इन दिल्ली। पास्टर की नम्रता को हम सचमुच में हम आदर महिमा करते हैं। ही स्टार्टेड बाय सेइंग आई हैव अ स्मॉल चर्च। यदि पास्टर का चर्च स्मॉल है तो हम तो नॉन एग्जिस्टेंट हैं। हालेलुया। बट हिज इंस्पिरेशन इज अमेजिंग। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब पास्टर ने बोला कि इतना मजबूरी था, इस मजबूरी के ऊपर भी मैंने समय निकाल के यहाँ आया करके, ये चीज़ एक चीज़ को दर्शाता है। क्या है? पीछे जो दिख रहा है किस कलर का है ये? हाँ जी, दिट शोस अवर जॉन फिलिप पास्टर एज अ हार्ट ऑफ गोल्ड। कोई उसको मना नहीं कर सकता। ओके, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, इनकी ग्रोथ की सीक्रेट क्या है। यदि हम एपिसोड्स में जाएंगे, प्रेरितों के काम में जाएंगे, हर अपोस्टल ने दे वर्क फॉर द किंगडम, राज्य के लिए काम किया। हालेलुया। कोई एक मिनिस्ट्री के लिए काम नहीं किया। यदि मिनिस्ट्री के लिए काम करता होता तो ट्रस्ट ऑफ एफिशिएंस, हाँ, कोलोशियन सोसाइटी रजिस्टर्ड होगा, हाँ, रोमन्स मिनिस्ट्री ऑफ चर्चेस। नहीं, दे वर्कड फॉर द किंगडम। हालेलुया। इन द सेम वे गुड़गांव में, हाउ मेनी मैन ऑफ गॉड फ्रॉम गुड़गांव? गुड़गांव फेलोशिप हैज अ फैंटास्टिक सिनर्जी। गुड़गांव क्रिश्चियन लीडर्स फेलोशिप हैज अ फैंटास्टिक सिनर्जी।
और गुड़गांव क्रिश्चियन चर्चेस में, फेलोशिप में जो भी है, दे आर ओपन माइंडेड, दे आर नॉट मिनिस्ट्री क्लोज्ड, दे आर वर्किंग फॉर द किंगडम, राज्य के लिए काम कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? एक दूसरे का सहायता करते हैं, मदद करते हैं, साथ देते हैं, कंधे पे कंधे मिलाकर राज्य के लिए काम करते हैं, ना कि अपना पर्सनल मिनिस्ट्री के लिए। क्यों ना एक ताली बजाइए। सच है ये, वाकई में मैं वैसे बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि कितनी साथ मिलके हम साथ में काम कर रहे हैं कि एक दूसरे की कलीसिया दूसरों को बहुत मदद करता है। मेरा असिस्टेंट पास्टर जो है, इनको रेफर किया पास्टर जीजो वर्गीस ने, और दैट असिस्टेंट पास्टर वाज ट्रेन्ड बाय पास्टर जॉन फिलिप। हालेलुया। कई सारे परिवार एक चर्च से दूसरे चर्च में आते हैं, फिर दूसरे चर्च में जाते हैं, बट हम उसको गलत नहीं मानते हैं, क्योंकि हम सब एक देह के लिए यहाँ नियुक्त किया हुआ है। हालेलुया। कभी भी जब गुड़गांव क्रिश्चियन फेलोशिप, गुड़गांव पास्टर्स की गैदरिंग के लिए ज़रूरत होता है, जगह की ज़रूरत है, एक व्यक्ति तैयार है जगह को खोल कर देने के लिए, हमारे अलावा पास्टर जॉन फिलिप। हालेलुया। एंड ही इज किंगडम माइंडेड। इसलिए नोएडा का वो जो फैसिलिटी का, आप सब जानते हो ना पास्टर जॉन फिलिप को, नोएडा का इतना बड़ा फैसिलिटी है। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट फैसिलिटी? एनीबडी नो पास्टर? हाँ जी, लाइफ सर्कल, बट होली किंगडम। हालेलुया। मेरे मित्रों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, यदि आपकी सेवकाई में आपको आगे बढ़ाना है तो मिनिस्ट्री के लिए काम करना छोड़ो, राज्य के लिए काम करना शुरू करो। राज्य के लिए काम करने का मतलब ये है कि अपना फैसिलिटीज़ को खोलो, पहले अपना दिल को खोलो, मन को खोलो, क्योंकि हम सब एक देह, एक राजा, एक मालिक के लिए हम काम कर रहे हैं। खुदा बाप आप सबको आशीष करे। थैंक यू सो मच। मैं हृदय की गहराई से पास्टर जी को और परिवार को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, पूरी कलीसिया को, कि इतना एक राज्य का एक अचीवमेंट परमेश्वर ने करने के लिए उनकी सहायता किया। हालेलुया। पास्टर जी को मैं बहुत लंबे समय से, जैसे सब लोग बता रहे हैं, ऐसे सब मैं तो नहीं देख पाया हूँ, लेकिन हाँ, जब से गुड़गांव आया हूँ तो काफ़ी करीब से उनको ऑब्जर्व करने के लिए प्रभु ने मदद किया, और मैंने ये पाया कि परमेश्वर ने उनके अंदर कुछ ना कुछ करते रहने का एक हृदय दिया है। कभी लाइफ सेंटर खोल रहे हैं, कभी कुछ और कर रहे हैं, कभी स्कूल शुरू कर रहे हैं। और एक दिन प्रभु के दास ने ऐसे ही बताया, जब बसई का जो उनका बाइबल स्कूल है वहाँ पर हम पढ़ा रहे थे, तो उन्होंने एक दिन आके बोला कि आज जाकर एक मॉल के अंदर मैंने 6 ऑफिसेस बुक कर दिए हैं। तो मैंने मन में सोचा कि एक और नया कदम इन्होंने ले लिया। देखो, कुछ करने वाले लोगों को देखकर बड़ा अच्छा लगता है। हालेलुया। और मुझे विश्वास है कि आज उन्होंने मॉल में बुक किया है, कल वो मॉल खरीदेंगे। क्योंकि हमें विश्वास से घोषणा कर देना, अब गुड़गांव में ये सब होने वाला है। हालेलुया। और मैं इस सब चीज़ों को देखता हूँ कि ये सब प्रभु के राज्य का अचीवमेंट है, ये व्यक्ति का, इनका, उनका नहीं है। ये हमें समझना है कि एक मॉल के अंदर एक कलीसिया आने का मतलब कुछ स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पेनिट्रेट हुआ है, कुछ आत्मिक जगत में टूटा है, क्योंकि एक ऐसी जगह के अंदर एक प्रभु की आराधना शुरू हुई है। हालेलुया। और मैं ये विश्वास करता हूँ कि ये गुड़गांव में प्रार्थना करने वालों का प्रार्थनाओं का फल भी है। हालेलुया। पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कि ये शहर बदलेगा, और एक दिन इस शहर के अंदर एक सिंगल कलीसिया ऐसी हो जाएगी, मतलब सिंगल कलीसियाएं उस संख्या में पहुंचेगी कि 10-10 हज़ार लोग आराधना के लिए इकट्ठे होंगे। और जब गुड़गांव की कलीसिया एक साथ आएगी तो लाखों में बदलेगा। वो समय ये शहर देखेगा, उसकी तैयारियां चल रही है। बाइबल के अंदर हम देखते हैं कि हर मंदिर जब बनाया जाता था, उसका अगला मंदिर जो आता था ना, वो उससे भी बड़ी महिमा के साथ आता था। तो ये एक तरफ से इस मॉल के अंदर एक परमेश्वर की महिमा उतरी है। अब इससे आगे इससे भी ऊंचे के स्तर का होगा। इस चीज़ को उद्घाटन का, जैसे एक ब्रेक थ्रू लेके आने के लिए प्रभु ने अपने दास को इस्तेमाल किया है। यहाँ बैठे हर व्यक्ति इस बात को ड्रीम करने लग जाए, सोचने लग जाए कि ये शहर के अंदर प्रभु एक बहुत बड़ा कार्य करेगा।
उसकी महिमा होगी। हालेलुया। जो शैतान सालों सालों से यहाँ पर शासन करता आ रहा है, और पवित्र आत्मा ने पिछले दिनों में समझाया कि ये त्योहारों और इन सब चीज़ों के द्वारा वो रीएस्टैब्लिश कर रहा है। जो हम जानते हैं भारत के अंदर त्योहार ये छोटी चीज़ें नहीं होती है, ये रीएस्टैब्लिश हो रहा है उसके गढ़ों का। लेकिन एक समय आ जाएगा कि इनकी ताकत निष्क्रिय हो जाएगा और ये जगह सब यीशु की महिमा के लिए जाना जाएगा। परमेश्वर इस कलीसिया को और हम सबको इस काम के लिए इस्तेमाल करें। आमीन।